Isn't this him? He told me what I've done. क्या ये वही नहीं? उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए. Now notice, Jesus, that was him up there in that man that had his back turned to the tent and told what Sarah was thinking about inside the tent. अब गौर करें, यीशु जो शख्स के अंदर था और उसकी पुश्त खैमे की तरफ थी और उसने बताया कि सारा खैमा के अंदर बैठकर क्या सोच रही है. The Word of God says in Hebrews the 4th chapter that he says this. खुदा का कलाम अब्रानियों 4 बाब में कहता है, वो यूं फरमाता है, The Word of God is more powerful and sharper than a two-edged sword, cutting to the sunder and the marrow of the bone, and a discerner of the thoughts and intents of the heart. खुदा का कलाम हर एक 2-धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, जो जान, रूह, बंद और गूदे को चीरकर निकल जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है. It's the Word. And every time that a prophet came, he come with the Word. And he was the Word for that age. ये कलाम है, और जब कभी कोई नबी आता है तो वो खुदा के कलाम के साथ आता है और वो उस जमाने के लिए कलाम होता है. What did he do? A prophesier who discerned the thoughts that was in the heart. और वो क्या करता है? एक नबूवत करने वाला, दिल के ख्यालों को जानने वाला होता है. It done it in Jesus Christ because he was the fullness of the Word. चूंकि यीशु मसीह कलाम की पूरी मामूरी था, इसलिए उसने इसके अंदर भी ऐसे ही किया. And Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. और यीशु ने कहा, जिस तरह सदूम के दिनों में हुआ था, उसी तरह इब्ने आदम के आने के दिनों में भी होगा. The Spirit of God would come upon the earth in a form of human beings. खुदा का रूह इंसानी सूरत में दुनिया में आएगा. God manifested in human flesh. Amen. Do you see it? खुदा जिस्म में जाहिर होगा. आमीन. क्या आप इसे समझते हैं? And would do the same thing that God did in human flesh at Sodom. और वही काम करेगा जो खुदा ने इंसानी सूरत में सदूम के जमाने में किए. Remember, they were waiting for a promised son. And right after that, the promised son came. याद रखें कि वो माऊदा फर्जंद के लिए इंतजार कर रहे थे और ठीक इसके बाद वो माऊदा फर्जंद आ गया. That was the last sign that Sodom and Abraham's group saw before the promised son arrived. Did you notice that? ये एक आखिरी निशान था जो अहले सदूम और इब्राहिम ने माऊदा फर्जंद के जाहिर होने से कबल देखा. क्या आपने इस पर गौर किया? And now the church spiritual has come to that hour. और अब रूहानी तौर पर कलीसिया उस मकाम पर पहुंच चुकी है. Somebody said, Brother Branham, did you say that was God? किसी ने कहा, भाई ब्रैनम, क्या आप कहते हैं वो खुदा था? The Bible said it was God. It don't need no interpreting. बाइबल कहती है कि वो खुदा था. इस बात की तफसीर करने की जरूरत नहीं. He's Elohim. That's what Abraham called him. Any Bible reader knows that. Elohim, the all-sufficient one. वो एलोहिम है. इब्राहिम ने उसे इसी नाम से पुकारा और बाइबल का कोई भी पढ़ने वाला जानता है, एलोहिम कादर मुतलक खुदा है. He was the first, the last, the beginning, the end. Elohim. वो अव्वल और आखिर है, इब्तदा और इंतहा है. एलोहिम. Abraham called him Elohim. इब्राहिम ने उसे एलोहिम कहकर पुकारा. God in capital letters in the Hebrew Elohim, just like in the beginning God Elohim. खुदा अब्रानी के बड़े हरूफ में लिखा है एलोहिम, जिस तरह वो इब्तदा में था, खुदा यानी एलोहिम. He was Elohim manifested in human flesh, wearing human clothes, eating human food. Amen. वो एलोहिम था जो इंसानी जामा में जाहिर हुआ. उसने इंसानी लिबास पहना और इंसानी खुराक खाई. आमीन. A sign that in the last days that God will appear again among His people in human flesh. Hallelujah. Amen. ये निशान था कि आखिरी दिनों में खुदा दोबारा इंसानी जामा में अपने लोगों के दरमियान जाहिर होगा. आमीन. Jesus said, "The works that I do shall you do also." यीशु ने कहा, जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे. And as it was in the days of Sodom, so shall it be at the coming of the Son of Man. और जिस तरह सदूम के दिनों में हुआ, वैसे इब्ने आदम के आने के वक्त भी होगा. Amen. That don't need no interpreting. It needs manifestation. That's what it needs. आमीन. इसकी तफसीर की जरूरत नहीं, बल्कि इस ज़हूर की जरूरत है, और बस यही जरूरत है. Amen. Do you believe that? Let's bow our heads. आमीन. क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? आइए अपने सरों को झुकाते हैं. Our Heavenly Father, we give to you thy promise tonight that you said these things. You promised them. हमारे आसमानी बाप, आज रात हम तेरे वादों को दोहराते हैं कि तूने ऐसी बातें कही हैं.
तूने इनका वादा किया है। There's no one can make your word live but you. तेरे सिवा कोई दूसरा तेरे कलाम को जिंदगी नहीं दे सकता। You said, let there be light, and there was light. No one has to interpret that. It was manifested. तूने कहा रोशनी हो जाए और रोशनी हो गई। किसी को इसकी तफसीर करने की जरूरत नहीं, बल्कि ये बात ज़हूर में आई। As we quoted Isaiah the prophet, a virgin shall conceive. She did. हमने यशायाह नबी का हवाला दिया कि एक कुंवारी हामला होगी, और वो हुई। Doesn't need any manifestation. She did it. That's what happened. इसकी तफसीर की जरूरत पेश नहीं आई, क्योंकि वो हामला हुई। ये वो बात है जो वकू में आई। You said when he come to be born in Bethlehem. तूने कहा था जब वो आएगा तो वो बैतलहम में पैदा होगा। Out of Bethlehem, Judea, art thou not the least among all the princes of Judah, of Israel, but out of thee shall come the ruler of my people. ए बैतलहम यहूदिया के इलाका, तू इसराइल यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, लेकिन तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गल्लाबानी करेगा। The things that he would do, what he would cry at the cross, how he'd be condemned, pierced his feet and his hands. वो क्या काम करेगा, वो सलीब से क्या पुकारेगा, वो किस तरह से रद्द किया जाएगा, उसके हाथ और पांव छेदे जाएंगे। He was wounded for our transgressions and bruised for our iniquity. Chastisement of our peace upon him, with his stripes we were healed. और वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकरदारी के बाइस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई और उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई। How that David said, I'll not leave his soul in hell, and neither will I suffer his Holy One to see corruption. दाऊद किस तरह कहता है कि तू मेरी जान को आल में रवा में ना छोड़ेगा और ना अपने मुकद्दस को सड़ने की नौबत तक पहुंचने देगा। And on the third day, before the 72 hours could set in to corrupt his body, the word of God said he'll raise up. और तीसरे रोज पेशतर इसके कि उसके जिस्म को सड़ने के लिए 72 घंटे पूरे होते, खुदा का कलाम कहता है कि वो उसे उठा खड़ा करेगा। They said they stole his body away. They still believe it. But we believe, Lord, your word. उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उसके शागिर्द उसके बदन को चुरा ले गए, और वो अभी तक इसी बात का यकीन करते हैं। लेकिन खुदावंद, हमारा ईमान तेरे कलाम पर है। It was manifested. Jesus Christ raised up. And he said, although I am with you always, even to the end of the world. जो जाहिर हुआ, यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा होकर कहा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। We believe that you're here tonight. हमारा ईमान है कि तू आज रात यहाँ मौजूद है। We believe that you're just as much Jesus Christ tonight here as you ever was. हम ईमान रखते हैं कि तू वैसा ही यीशु आज रात यहाँ पर मौजूद है जैसा कि पहले था। And you're only looking for eyes, arms, legs, mouth, souls, bodies that you can use to manifest yourself. और आंखों, टांगों, मुंह, बाजुओं, जान और बदन को ढूंढ रहा है जिनमें तू अपने आप को जाहिर करके काम कर सके। God sanctify us tonight that we might see the living Jesus Christ living among us. ऐ खुदा, आज रात हमें मुकद्दस कर ताकि हम मसीह को अपने दरमियान सुकूनत करते हुए देख सकें। Let him come. उसे आने दे। Then will come to pass like the hunger of those Greeks who came that day and said, Sir, we would see Jesus. ताकि फिर वही वाकया हो जो उस दिन उन मुतलाशी यूनानी लोगों के साथ हुआ और उन्होंने कहा, जनाब, हम यीशु को देखना चाहते हैं। And they got to see him. Oh, what a thrill it must have been when they looked upon him. और उन्होंने उसे देखा। हो, जब उन्होंने उसे देखा होगा तो वहाँ किस कदर हलचल मच गई होगी। God, you're the same today, and you promised that if we hungered, we could see you. ऐ खुदा, तू आज भी वही है और तूने वादा किया है कि अगर हम भूखे और प्यासे होंगे तो हम तुझे देखेंगे। A little while and the world won't see me, the unbeliever, but yet ye shall see me, for I'll be with you, even in you, to the end of the world. थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर न देखेगी, यानी बेईमान लोग, लेकिन तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारे अंदर हूँगा। We know that you're the same yesterday, today, and forever. क्योंकि हम जानते हैं कि तू कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। Lord, the words has been said, it's been written, now let it be done for the glory of God to show that He keeps His word. Amen. ऐ खुदावन, कलाम सुनाया जा चुका है और ये लिखा जा चुका है, अब इसे पूरा होने दे और खुदा के जलाल के लिए ये दिखा, इसलिए कि तू अपने कलाम पर कायम रहता है। आमीन। God bless you.
I'm going to call the prayer line. खुदा आपको बरकत दे। अब मैं दुआया कतार को बुलाने जा रहा हूँ। I believe Billy said to give out prayer cards 1 to 100 or something like that. He isn't here just now. और मुझे यकीन है कि जैसे बिली ने कहा कि उसने 1 से लेकर 100 नंबर तक दुआया कार्ड तकसीम कर दिए हैं। कुछ ऐसी ही बात उसने कही थी। अभी वो यहाँ नहीं है। What is a prayer card number? Somebody look on your back here. It'd be a number and a letter, A, B, C, D. क्या दुआया कार्ड नंबर क्या है? कोई भी अपने कार्ड की पिछली जानिब देखे। यहाँ नंबर और एक हरूफ लिखा होगा, जैसे A, B, C, D या। What is it? A, all right? क्या ये A है? ठीक है। Let's have A number 1, 2, 3, 4, 5. Just start standing up like this. आइए हम A नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लेते हैं। इसी तरतीब के साथ खड़े होना शुरू करें। A number 1, number 2, number 3, number 4. A नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। 4, I didn't see it stand up. Prayer card number 4. 1, 2, 3. Prayer, maybe they can't get up. If they can't, somebody look at your neighbor's card. He may have a card, he can't stand up. 4 नंबर को मैंने कतार में खड़े हुए नहीं देखा। दुआया कार्ड नंबर 4, 1, 2, 3। शायद हो सकता है इनको नंबर 4 नहीं मिल रहा। अगर ये इन्हें नहीं मिल रहा तो कोई भी शख्स अपने साथ वाले के कार्ड को देखे। शायद उस शख्स के पास कार्ड हो लेकिन वो खड़ा ना हो सकता हो। Quickly now, there it is, 4, 5. Prayer card number 5. अब जल्दी करें। यहाँ है नंबर 4, 5। दुआया कार्ड नंबर 5। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। Just start coming up here now as your numbers are called. जो ही आपका नंबर पुकारा जाए आप यहाँ ऊपर आना शुरू करें। Number 1, 2, 3, just come right out this way. नंबर 1, 2, 3 जरा इस तरफ से आना शुरू करें। Prayer card number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Just take your places. दुआया कार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आप अपनी जगह पर खड़े होते जाएं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। If there's anybody can't, I see a young man in a wheelchair back there. If your number's called, son, and if you can't get, well, just hold your hand. We'll see that you get here. See? कोई शख्स जो ना आ सकता हो, मैं वहाँ पीछे एक नौजवान को पहियों वाली कुर्सी पर बैठे देख रहा हूँ। बेटा, अगर आपका नंबर पुकारा गया है और आप नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, तो आप अपना सिर्फ हाथ उठाएं, हम आपको यहाँ लाने का बंदोबस्त करेंगे। समझे? How many in here doesn't have a prayer card and yet you're sick? Let's see your hands. Anywhere. यहाँ कितने लोग हैं जो बीमार हैं लेकिन उनको दुआया कार्ड नहीं मिला? आप जहाँ कहीं भी हैं, हमें सिर्फ अपना हाथ दिखाएं। That's right. Put your hands up. ठीक है, ये बेहतर तरीका है। आप अपने हाथ उठाएं। Do you believe while they're getting them together? Do you believe this? That He's the same yesterday and forever? क्या आप ईमान रखते हैं? जबकि वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि वो कल, आज और अब तक यकसा है? How many watch these ministers? Doesn't the Scripture say today, brethren, that He is a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities? Is that right? Amen. कितने हैं जो ईमान रखते हैं? इन खादमों की तरफ देखें। क्या भाइयों, आज कलाम ऐसा नहीं कहता कि वो हमारा ऐसा सरदार काहिन है जिसे हम अपनी कमजोरियों के बायस छू सकते हैं? क्या ये सच है? How many believes that? Raise your hand. कितने हैं जो इस बात पर ईमान रखते हैं? अपना हाथ उठाएं। He's a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. वो हमारा ऐसा सरदार काहिन है जिसे हम अपनी कमजोरियों में छू सकते हैं। Then if the Bible says He's the same yesterday and forever, how many believes that? फिर बाइबल कहती है कि वो कल, आज बल्कि अब तक यकसा है, तो कितने हैं जो इस बात पर ईमान रखते हैं? Then how would He act today? तो फिर वो आज किस तरह काम करेगा? He'd have to act like He did yesterday. Is that right? वो उसी तरह काम करेगा जिस तरह उसने गुजरे कल में किया। ये सच है। Where's He at tonight? Sitting on the right hand of the Majesty, His body. The Holy Spirit is here in the building to make Him known. आज रात वो कहाँ है? किब्रिया की दानी तरफ बैठा है। उस बदन में रूह कुस इस इमारत में मौजूद है ताकि उसको जाहिर करे। Notice,
Now look, what happened when somebody touched his garment back there, a woman one day? गौर करें और अब देखें कि एक दिन जब एक औरत ने उसकी पोशाक को छुआ तो क्या हुआ था। She didn't have a prayer card, we'd say, but she touched his garment. हम कहेंगे कि उसके पास कोई दुआया कार्ड ना था, लेकिन उसने उसकी पोशाक को छुआ। And when she touched his garment, Jesus turned around and said, "Who touched me?" और जो ही उसने उसकी पोशाक को छुआ तो यीशु मुड़ा और उसने कहा, मुझे किसने छुआ है। Peter rebuked him and said, "Why, Lord, that doesn't sound just sensible like." पतरस उसे मलामत करने लगा और कहने लगा, खुदावन तू क्यों ऐसा कहता है, ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता। Why, everybody's trying to touch you. Why say, "Who touched me?" क्यों ऐसा कहता है, जबकि हर कोई तुझे छूने की कोशिश कर रहा है और तू क्यों कर कहता है कि मुझे किसी ने छुआ है। He said, "But I perceived that I got weak." How many knows that? उसने कहा, लेकिन मैंने महसूस किया है कि मैं कमजोर हुआ हूँ। कितने लोग इस बात को जानते हैं। Virtue, which means strength, went from me. नेकी, जिसका मतलब है कुवत, जो कि मुझसे निकली है। I got weak. Somebody touched me with a different kind of a touch. चूंकि किसी ने मुझे फर्क अंदाज से छुआ है, इसलिए कुछ कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। And he turned around, looked to the audience until he found where that channel of faith. और उसने घूमकर लोगों की तरफ देखा जब तक कि उसने ईमान की उस कड़ी को ना पा लिया। Everybody was putting their arms around, "Oh, Rabbi, we believe you," and all this. हर एक अपने बाजू उसके इर्द गिर्द डाल रहा था और कह रहा था, ए रबी, हम तुझ पर ईमान रखते हैं, और इसी अंदाज में और बहुत कुछ कह रहे थे। But there was somebody who really believed it. लेकिन उनके दरमियान एक थी जो हकीकत में उस पर ईमान रखती थी। And she touched his garment and believed that she was healed. Because she said in her heart if she could do it, that's what would happen. और उस औरत ने उसकी पोशाक को छुआ और ईमान रखा कि वो तंदुरुस्त हो गई है, क्योंकि वो अपने दिल में कहती थी कि अगर मैं उसकी पोशाक को छू लूंगी तो तंदुरुस्त हो जाऊंगी। He turned around, looked up on the audience till he found her, and he said, told her blood issue had stopped, and she was healed. Is that right? यीशु ने घूमकर लोगों को देखा जब तक कि उस औरत को तलाश ना कर लिया, और यीशु ने उससे कहा, उस औरत को बताया कि उसका खून बहना बंद हो गया है और वो तंदुरुस्त हो गई है। क्या ये दुरुस्त है?